Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Dear students, welcome again. Today we are going to discuss the previous topic. First we are going to have a reflection of few of the topics we have discussed in our previous lecture. So what we have discussed in our previous lecture, we have discussed about conflicts and what are the reasons why we have conflicts at our workplaces. Particularly we talked about the public sector of Pakistan. Persons who are working in the public sector of Pakistan, so they have conflicts. So in our conflicts, we have discussed about that in our previous lecture, that there is no place on earth where there is no conflict at workplace. So having conflict at workplace is a natural phenomena. So it is really very difficult to avoid the conflict situations when two or more than two persons are working together at one place. So we have discussed about different point of views regarding conflict, like why do we have conflict. Like for example, in our previous lecture, we have talked about like for example, why people have conflicts. Like for example, we have said in our previous lecture that people have, when they have certain stake involved, when they have certain interest involved in any issue or in any matter, or so when they have an issue or interest or any stake involved in any of the situations, so they involve themselves in conflict. So then we have in our previous lecture we discussed about the different feelings when we are in conflict situation. Like for example, during conflict one may get angry. So getting angry is one of the symptoms that you are in conflict situation. Then some people, they are frustrated, and some people they just like become more excited. So this is again a very interesting finding, that in conflict situations some people, they really enjoy it and they are excited because they have something new to discuss and they have something new to talk about. So they become more active in conflict situation. Then we have also talked about certain situations, like for example we have talked about different actions which are connected with conflicts. Like for example, in some situations people they face conflict and they fight and they face and they try to solve the conflict. On the other side, some people, they avoid conflict and they fly, they leave that place and they move out or things like that. Okay, now we move on towards our today's topic, and that is why conflict arise. So these are some of the reasons why people differ, so they see things differently. Like for example, when we talk about employees who are working in different organizations in Pakistan, we see that no two humans are equal. So they have different perceptions, they have different value systems, they have a different feeling. So definitely when they have a different perceptions, so they see things differently. Like for example, if you are looking at one thing and I'm also looking at the same thing, so there are like different things that comes in your mind, and same is true with me, that like I may think about that product or that object in a different angle. So meaning that when we are looking at the same product, when we are looking at the same situation, people have different perceptions about it, and that is why based on different perceptions they have different way of seeing things. Let us like discuss here one very important point here, that like problem. Now problem is not a problem. The way we see the problem is the real problem. Like for example, if you face any problem in your organization and if you think that oh my God, now what I do, और आप सर पकड़ के बैठ जाते हैं और आपकी हार्ट बीट इंक्रीज हो जाती है और आप हाई स्ट्रेस में चले जाते हैं, सो वो प्रॉब्लम खुदा ना खास्ता मल्टीप्लाई हो सकती है. सो बजाय ये कि प्रॉब्लम्स को मल्टीप्लाई किया जाए और बजाय ये कि आपकी हेल्थ के ऊपर एक नेगेटिव इम्पैक्ट हो, एक बहुत ही डेंजरस किस्म का इम्पैक्ट हो. ऑफ कोर्स जब लोग हाई स्ट्रेस में जाते हैं तो डेफिनेटली उनकी जो हेल्थ है बहुत डिक्लाइन होती है, उनको हार्ट अटैक हो सकता है, कैंसर हो सकता है, उनको एक कोई बहुत खतरनाक किस्म का डिजीज हो सकता है. तो डेफिनेटली दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट कि व्हेनेवर वी हैव प्रॉब्लम इन आवर ऑफिस, so whenever we have conflict in our offices,
So do not think that we cannot manage it, because the word impossible itself says that I am possible. So this is really very important. So we need to improve the way we look at our problems. So the problem जो है वो इतनी important नहीं है जितना कि आपके वो उसको देखने का तरीका. So this is really very important. So if we improve like in our perception, if we improve our awareness level about that problem, if we look at other people in the world who have the same problem and how they are able to solve those particular problems. So if we involve ourselves in those type of activities in order to get awareness about that problem. So the more awareness you have, the less fear you have or the less tension you have. And then of course, so meaning that we can improve our perceptions if we want. And then people want different things. Of course, people, they want different things. Like for example, we as a human being, as an employee, we have different wants. Like for example, I want something else and you want something else. So people have different wants. Like for example, some persons, they want to have, you know, a big car, and some persons, they want to have a big house, and some persons, they want to have something else. So people have different wants, and when they have different wants, of course, due to difference in wants and difference in seeing things, they involve themselves in conflict. Then people have different thinking styles, like for example, which prompts them to disagree. So again, the very important thing here to discuss is that people have different thinking styles. हर एक का सोचने का तरीका डिफरेंट है, फर्क है. सो जब एक डिफरेंट थिंकिंग स्टाइल होगा तो डेफिनेटली डिसएग्री की तरफ लोग ज़्यादा चले जाते हैं कि लाइक फॉर एग्जांपल मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है, दूसरे साहब कहते हैं मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है, तीसरे साहब कहते हैं मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है. So people have different thinking styles. So definitely due to those different thinking styles that lead them towards a disagreement in most of the cases. And people are predisposed to disagree. Now this is really very important finding here, that लोग पहले से mindset बना के आए होते हैं कि हमने disagree करना है, हमने बात नहीं माननी, हमने पहले से एक चीज़ सोच के हम जाते हैं मीटिंग में, ऑफिस में, कि हमने जाके यस करनी है, हमने जाके नो करनी है, हमने पॉजिटिव कॉन्फ्लिक्ट करना है, हमने नेगेटिव कॉन्फ्लिक्ट करना है. तो पहले से आप अपना एक माइंडसेट बना के जाते हैं. यहाँ पे वन वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर जो डिस्कस करने की जरूरत है कि आप एक प्लान करके जाते हैं. डेफिनेटली कोई भी मीटिंग अटेंड करने से पहले, कोई भी एक्टिविटी करने से पहले, ऑफ कोर्स यू हैव ए प्लान. उस प्लान को लेके आप चल रहे हैं. जब उस प्लान को लेके आप चल रहे हैं तो डेफिनेटली आप एक थिंकिंग करके आए हुए हैं कि आपने यस करनी है, आपने नो करनी है, आपने किस तरह से आर्गुमेंट्स करने हैं, वो सारा आप होमवर्क करके जाते हैं. बट अगेन यहाँ पे ये चीज़ बताना बहुत ज़रूरी है कि अगर एक मीटिंग में आप जा रहे हैं तो मीटिंग के अंदर जो दूसरे पार्टिसिपेंट्स आए हुए हैं, आपके जो दूसरे कॉलीग्स आए हुए हैं, जूनियर सीनियर्स आए हुए हैं, उनके पॉइंट ऑफ व्यू को लिसन करना, उनके पॉइंट ऑफ व्यू के ऊपर डिस्कशन करना, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से लर्न करना इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. सो आई ऑलवेज से वन थिंग दैट आई कैन improve my point of view if I include your point of view in my point of view and vice versa. So this is really very important. Okay, instead of winning or losing, I think we need to move towards solution, and this is really very important, and this is what we need in the public sector of Pakistan. And then people have different personalities. Again, people have, like for example, some people they like for example different attitude, different behavior. Some people they you know pretend, like for example they are more status conscious. Some people they have some other thing in their personality that is more dominating. So some people they always believe that they are the decision makers, and they are whatever they say, so those words are final. So people have different personalities, and when people have different personalities, of course when they sit together, of course the result is there are conflicts on different issues. And then people have different status. We have already discussed that. Like for example, a person in grade 22 and a person employee in public sector who is serving in grade 5. So when those grade 5 and grade 22 people are sitting at one place and they are discussing something, so there may arise a conflict because some people they are more status conscious and things like that.
people have different goals. Of course, some people, they value their personal goals more as compared to the organizational goals. So, and some people vice versa, they value organizational goals more than their personal goals. So, what is the best approach here? So, according to the current research, there is a need of alignment between the individual goals and the professional goals or the organizational goals. तो इंडिविजुअल गोल्स और ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को अलाइन करने की जरूरत है, एक बैलेंस में लाने की जरूरत है, एंड दैट इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट. एंड अकॉर्डिंग टू रिसर्च से ये साबित हुआ कि अगर आप चाहते हैं कि आपके एम्प्लॉइज बेहतरीन परफॉर्मेंस दें, आपके एम्प्लॉइज बेहतर तरह काम करें, तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप गोल अलाइनमेंट करें. आप एम्प्लॉइज को उनके इंडिविजुअल जो गोल्स हैं उनको आप देखें और जो ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स हैं उनको देखें और दोनों गोल्स को आपस में अलाइन करके मैच करने की कोशिश करें. सो इन दिस वे वी कैन इंप्रूव द ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस एज वेल एज individual performance and as well as team performance. And then people are influenced by fear, force, fairness or money. Now you see that people have conflicts in an organization because of certain fears or force or maybe fairness or money. So इनमें से कोई भी फैक्टर हो सकता है जिसकी वजह से they may involve themselves in conflict situation. Now, before we move further, let us have a brief look on the history with conflict. So what is your history with conflict? Like for example, how was conflict perceived in your family or community? Now this is a very important question. आप सबको और मुझे अपने आप से पूछने की बहुत ज़रूरत है कि हमारी फैमिली में, हमारी कम्युनिटी में, कि जिस इलाके में हम रहते हैं, जिस कम्युनिटी में हम रहते हैं और जिस घर में हम रहते हैं, वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट को कैसे परसीव किया जाता है, कॉन्फ्लिक्ट को अच्छा समझा जाता है, कॉन्फ्लिक्ट को बुरा समझा जाता है, कॉन्फ्लिक्ट के बारे में किस किस्म की राय रखते हैं आपके फैमिली मेम्बर्स और आपकी कम्युनिटी, आपके ख़ानदान वाले, और जो आपका एक सोशल सर्कल है वहाँ पे किस तरह की एक परसेप्शन है कॉन्फ्लिक्ट के बारे में, वेदर इट इज पॉजिटिव और नेगेटिव. एक तो ये देखने की जरूरत है, नंबर वन. एंड देन हाउ डिड योर फैमिली कम्युनिटी डील विद कॉन्फ्लिक्ट. सो ऑफ कोर्स फैमिलीज में, कम्युनिटीज में, आपकी सराउंडिंग्स में, आपकी सोशल सर्कल में डेफिनेटली कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं. उस कॉन्फ्लिक्ट को किस तरह से डील किया जाता है, किस तरह से मैनेज किया जाता है, अगेन दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट. तो यहाँ पे हमने देखा कि एक तो कॉन्फ्लिक्ट के बारे में परसेप्शन क्या है आपकी फैमिली की और कम्युनिटी की, और दूसरी तरफ हमने देखा कि जो कॉन्फ्लिक्ट है उसको किस तरह से डील किया जाता है, उसको किस तरह से मैनेज किया जाता है. क्या डिसीजंस को इम्पोज किया जाता है, क्या फीडबैक के मुताबिक डिसीजंस लिए जाते हैं, क्या डिसीजन मेकिंग के अंदर तमाम को शामिल किया जाता है, या डिसीजन मेकिंग को वन मैन शो है कि एक पर्सन डिसीजन लेता है और बाकी सब उसको फॉलो करते हैं. तो ये हिस्ट्री थोड़ी सी देखने की जरूरत है ताकि पहले हम देख लें कि आपके जो हिस्ट्री है कॉन्फ्लिक्ट के साथ वो क्या है, एंड देन आफ्टर अंडरस्टैंडिंग कि आपकी जो फैमिली है और जो कम्युनिटी है उसके जो आइडियाज हैं कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर, वो आपके ऊपर उसका क्या इन्फ्लुएंस है. तो व्हेन यू नो द डिफरेंस, जब आप इस चीज को अंडरस्टैंड करते हैं कि आपकी कम्युनिटी का, आपके सोशल सर्कल का, आपकी फैमिली का, आपके कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट स्टाइल के ऊपर या डिसीजन मेकिंग के ऊपर आपका क्या इम्पैक्ट है, सो जब आप इस डिफरेंस को रियलाइज करते हैं, देन यू आर ओनली एबल टू डील विद कॉन्फ्लिक्ट्स इन अ बेटर पोजीशन. सो दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट कि टू डेवलप एन अंडरस्टैंडिंग कि आपकी फैमिली में कॉन्फ्लिक्ट को किस तरह लिया जाता है, डिसीजन मेकिंग कैसे की जाती है. सो इन तमाम चीज़ों को जब आप अंडरस्टैंड करते हैं, आप रियलाइज करते हैं, तो जब आप अपने ऑफिस में आप एक कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन में आते हैं, तो जब आप एक डिसीजन लेने जा रहे होते हैं, सो उस डिसीजन को करने से पहले अगर आपको ये मालूम हो कि आपकी फैमिली का, आपकी कम्युनिटी का, आपकी सोशल सर्कल का, आपकी परसेप्शन के ऊपर उसका क्या इम्पैक्ट है, तो इस अंडरस्टैंडिंग को जब आप करते हैं तो डेफिनेटली जो भी आप कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन में डिसीजन लेंगे वो काफ़ी बेहतर होगा. और अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग उसके बारे में वीक है या नहीं है तो ऑफ कोर्स एक ऑटोमेटिकली आपका एक ऑटो रिस्पॉन्स होगा, एंड विच इज नॉट गुड इन अ कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन. सो डिफरेंसेस को अंडरस्टैंड करने की, रियलाइज करने की यहाँ पे बहुत जरूरत है. नाउ इट इज कॉमनली सेड दैट टू हेड्स आर बेटर देन वन ओनली इफ दे कंटेन डिफरेंट ओपिनियंस. नाउ दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट. सो जब हम बात करते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन की, पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन की, पाकिस्तान में बात करते हैं, एक डिपार्टमेंट की बात करते हैं, तो डेफिनेटली वहाँ पे डिफरेंट एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं.
मेल फीमेल काम कर रहे हैं, डिफरेंट कल्चर से लोग वहाँ पे काम कर रहे हैं, डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं उनकी, डिफरेंट उनकी हिस्ट्री है, डिफरेंट बैकग्राउंड से वो आए हुए हैं, डिफरेंट रिलीजन से भी पॉसिबिलिटी है कि मुख्तलिफ लोग जो हैं मुख्तलिफ कंट्रीज से आके पाकिस्तान में जॉब कर रहे हैं. सो द थिंग इज जब आप देखते हैं कि जो एक कहते हैं कि एक पॉजिटिव जो कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन कैसे क्रिएट होगी कि टू हेड्स आर ओनली बेटर देन वन ओनली इफ दे कंटेन डिफरेंट ओपिनियंस. सो दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर हम कहते हैं कि एक डिपार्टमेंट के अंदर, एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो लोग काम कर रहे हैं, अगर उनके पॉजिटिव ओपिनियंस हैं, सो अगर वो पॉजिटिव कॉन्फ्लिक्ट करते हैं, वो अगर इम्प्रूवमेंट्स की बात करते हैं, वो अगर परफॉर्मेंस इन्हांसमेंट की बात करते हैं, वो इम्प्रूवमेंट इन एफिशिएंसी की बात करते हैं, वो इम्प्रूवमेंट इफेक्टिवनेस की बात करते हैं. सो पॉजिटिव कॉन्फ्लिक्ट के साथ जब लोग बात करते हैं, जब वो आर्गुमेंट्स के साथ बात करते हैं, सो दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट एंड दैट इज व्हाई वी से दैट कि दो पॉजिटिव लोग जब आपस में मिलकर काम करते हैं तो द रिजल्ट इज 11, 1 और 1 11. Now, why and how do we get in conflict situation? Of course, जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया कि कोई भी कॉन्फ्लिक्ट में हम अपने आप को क्यों इन्वॉल्व करते हैं या किसी कॉन्फ्लिक्ट के अंदर क्यों शामिल हो जाते हैं, क्योंकि उसकी वजह ये है, बुनियादी वजह जो हम यहाँ डिस्कस करना चाह रहे हैं कि उस कॉन्फ्लिक्ट के अंदर आपका तो या तो रिलेशनशिप इन्वॉल्व होती है या आपका कोई उसके अंदर कोई आपका पर्सनल ऑब्जेक्टिव होता है. सो वेदर यू आर टॉकिंग अबाउट योर ऑब्जेक्टिव्स और वेदर यू आर टॉकिंग अबाउट द रिलेशनशिप, तो कोई ना कोई स्टेक आपका इन्वॉल्व होता है. और जब आपका कोई स्टेक इन्वॉल्व होता है, जब आपका कोई इंटरेस्ट इन्वॉल्व होता है, आपका ऑब्जेक्टिव इन्वॉल्व होता है, आपकी रिलेशनशिप इन्वॉल्व होती है, तो देन यू आर इन्वॉल्व इन कॉन्फ्लिक्ट. नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट कॉन्फ्लिक्ट, ऑफ कोर्स देयर आर different issues or challenges we need to talk about here when we talk about conflict. So there are certain issues जब हम बात करते हैं in conflict, like for example the facts, present situation and problem. Now the thing is कि एक present situation इस वक्त क्या चल रही है और problems क्या चल रही हैं. जो फैक्ट्स हैं, जब फैक्ट्स को आप सामने रखते हैं कि इस वक्त अगर आप देखते हैं कि आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक प्रेजेंट सिचुएशन क्या है और प्रॉब्लम्स क्या चल रही हैं, उसके मुताबिक आप रिस्पॉन्ड करते हैं. जो लोग प्रोएक्टिव हैं डेफिनेटली दे आर मच बेटर, क्योंकि उनका विजन बहुत ज़्यादा हाई होता है, वो बहुत दूर तक सोच के देख के बात करते हैं और डेफिनेटली दे आर लाइक इन्वॉल्व इन पॉजिटिव कॉन्फ्लिक्ट और वो पॉजिटिव फोकस उनका होता है. लेकिन जब हम बात करते हैं रिएक्टिव पर्सनस की, तो पब्लिक सेक्टर में जब हम देखते हैं पाकिस्तान में कि जो लोग रिएक्टिव हैं, कि लाइक फॉर एग्जांपल के प्रेजेंट सिचुएशन में अगर कोई प्रॉब्लम्स इफ दे आर फेसिंग इन देयर ऑर्गेनाइजेशंस, तो वो रिएक्टिव जब होते हैं तो डेफिनेटली दे आर इन्वॉल्व्ड इन कॉन्फ्लिक्ट. देन द गोल्स, टॉकिंग अबाउट गोल्स लाइक फॉर एग्जांपल हाउ थिंग्स ऑट टू बी, द फ्यूचर कंडीशन सॉर्ट. नाउ यहाँ पे अगर हम देखते हैं कि कॉन्फ्लिक्ट में एक बड़ा इशू जो हम पब्लिक सेक्टर में देखते हैं कि एम्प्लॉयज जो काम कर रहे हैं, हर एक एम्प्लॉय की एक अपनी सोच है कि इस वक्त लाइक फॉर एग्जांपल किस तरह की वर्किंग होनी चाहिए और फ्यूचर कंडीशंस क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं. तो जो फ्यूचर कंडीशंस की, जो फ्यूचर आपके डिजायर्स हैं, जो आपके डिजायर्ड टारगेट्स हैं जो आप अचीव करना चाहते हैं, और जो प्रेजेंट सिनेरियो चल रहा है उसके बारे में एक डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू है. सो प्रेजेंट के बारे में और फ्यूचर के बारे में जो आपकी एक अंडरस्टैंडिंग है और जो आप करना चाह रहे हैं या जो कर रहे हैं आप, तो डेफिनेटली उसके अंदर जब डिफरेंस आता है आपका डिफरेंट पर्सन्स के साथ, तो यू आर इन्वॉल्व इन कॉन्फ्लिक्ट एंड दैट इज अ बिग चैलेंज टू any organization. Then we talk about the methods, like for example the best, the easiest, the quickest, the most ethical. Like for example मेरा आपसे ये क्वेश्चन है कि आप जब हम इस कॉन्फ्लिक्ट की बात कर रहे हैं, तो जब लाइक फॉर एग्जांपल अगर एज ए स्टूडेंट अगर आप देखते हैं कि आपको एक असाइनमेंट जब दी जाती है, तो असाइनमेंट सॉल्व करने के लिए आप कौन सा मेथड यूज करते हैं? या आप दोबारा देखिएगा, बेस्ट मेथड, इजी मेथड, क्विकेस्ट मेथड, मोस्ट एथिकल मेथड. ओके, डेफिनेटली जब आप बेस्ट मेथड की बात करेंगे तो उसके अंदर डेफिनेटली आपका हार्ड वर्क आ जाएगा, आपका स्मार्ट वर्क आ जाएगा. ठीक है. नाउ दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट कि जब हम कोई भी एक्टिविटी करते हैं, कोई भी काम करते हैं, तो हमें पहले हम डिसाइड कर लेते हैं कि इस काम को करने के लिए क्या तरीके का अख्तियार किया जाए. नाउ किसी एक ऑर्गेनाइजेशन में जो लोग काम कर रहे हैं, जब वो किसी काम को करना शुरू करते हैं,
तो कुछ एम्प्लॉयज़ हैं वो कहते हैं कि वी शुड नेवर कंप्रोमाइज ऑन क्वालिटी, हमने बेस्ट मेथड को अप्लाई करना है। ऑफ कोर्स बेस्ट मेथड इन मोस्ट केसेस इज नॉट द इजीएस्ट और द क्विकेस्ट मेथड, so the best method may take a longer time or the best method may take more efforts. So best method के लिए आपको बहुत सारे sacrifices करने पड़ते हैं। On the other side same organization में कुछ और employees हैं जो ये कहते हैं कि कोई easy way out होना चाहिए, कोई quick way out होना चाहिए इस काम को करने के लिए। तो जो लोग quick और easy methods पे जाते हैं तो डेफिनेटली जब वो उन लोगों के साथ उनका एक डिसएग्रीमेंट, एक कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है जो कि बेस्ट मेथड्स को अप्लाई करना चाहते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, तो इनके दरमियान एक कॉन्फ्लिक्ट आता है और डेफिनेटली it's a big challenge to any organization, particularly when we talk about the public sector of Pakistan. Now talking about the values as one of the major challenges when we talk about conflicts in the public sector of Pakistan, the beliefs about priorities that should be observed in choosing goals and methods. तो यहाँ पे people value different things differently. So this is really very important to know the differences. कि हर employee हर चीज़ को एक तरह वैल्यू नहीं दे रहा होता। लाइक फॉर एग्जांपल कुछ लोग प्रमोशन को बहुत वैल्यू देते हैं, कुछ लोग अपनी पावर एंड अथॉरिटी को बहुत वैल्यू देते हैं, सो थिंग्स लाइक दैट। तो एक जब हम बात करते हैं वैल्यूज की तो ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर डिफरेंट एम्प्लॉयज की एक अपनी थिंकिंग है वैल्यूज के बारे में। सो पीपल वर्किंग इन द सेम ऑर्गेनाइजेशंस दे हैव different perceptions regarding different values. So जब value के अंदर differences आते हैं, जब perception की, like for example different employees की different value system जब होगा तो definitely उनके दरमियान conflict आने के बहुत ज़्यादा chances हैं. So now we move to the final point of this slide, and that is about the history. What has gone on before in our organization? तो किसी भी organization की history बहुत important है कि कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशंस में किस तरह उसको मैनेज किया गया, किस तरह उसको सॉल्व करने की कोशिश की गई। तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो मुख्तलिफ एग्जांपल्स होती हैं उसकी पास्ट में, नाउ दोज एग्जांपल्स कुड बी पॉजिटिव और नेगेटिव। नाउ यहाँ पे ये सिचुएशन है कि अगर कॉन्फ्लिक्ट को नेगेटिव तरीके से उनको मैनेज करने की कोशिश की गई तो एक ऑर्गेनाइजेशन की एक डिफरेंट हिस्ट्री हमें नज़र आ रही है, और अगर उसी सेम ऑर्गेनाइजेशन में कॉन्फ्लिक्ट्स को पॉजिटिव तरीके से मैनेज करने की कोशिश की गई तो वो हिस्ट्री को जब आप देखते हैं ऑर्गेनाइजेशन की तो वो चीज़ आपके नॉलेज में आती है। सो एक ऑर्गेनाइजेशन की हिस्ट्री को सामने रख के जब आप प्रेजेंट सिचुएशन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं तो डेफिनेटली एक उस ऑर्गेनाइजेशन की हिस्ट्री का इम्पैक्ट है कि हाउ यू सॉल्व योर प्रेजेंट प्रॉब्लम्स relating to your conflicts. So this is really very important. यहाँ में again I will try to like make a point here that if we keep on doing same things every day, we will keep on getting same results every time. So this is really very important किसी भी organization के लिए कि जो पास्ट में अगर कोई रॉन्ग एक्टिविटी हुई है, अगर पास्ट में कोई बैड एग्जांपल सेट हुई है तो उसको फॉलो करने की बजाय हमें ऑप्टिमिस्टिक होने की ज़रूरत है, हमें अपने एक्शंस को बेहतर करने की ज़रूरत है, हमें अपने एटीट्यूड और बिहेवियर को पॉजिटिव करने की ज़रूरत है। सो दिस इज़ द ओनली वे वी कैन मूव फॉरवर्ड। तो डेफिनेटली पास्ट डेफिनेटली लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से, एक्सपीरियंस पॉइंट ऑफ व्यू से इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हम अपने पास्ट को इग्नोर नहीं कर सकते, लेकिन पास्ट की अच्छी एग्जाम्पल्स को आगे लेके आया जाए, ना कि बुरी एग्जाम्पल्स को हम कंटिन्यू करने की कोशिश करें। Now, very important point, there are different theories of conflict. जब हम बात करते हैं conflict की तो there are different theories जिसको मैंने दो major categories में यहाँ पे show किया है. One is the traditional theory, the other is the modern theory. तो जब हम traditional theory की बात करते हैं तो what comes in your mind? Like for example, in traditional theory जो एक पुरानी थ्योरी, जो एक ओल्ड थ्योरी की जब हम बात करते हैं कि conflicts are caused by troublemakers. सो नाउ यू सी दैट कि कॉन्फ्लिक्ट को एक नेगेटिव चीज समझा गया कि जो ट्रबल मेकर्स हैं वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कॉन्फ्लिक्ट लेके आते हैं, वो कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करते हैं, और वो कॉन्फ्लिक्ट जो भी क्रिएट करता है वो कोई अच्छा इंसान नहीं है और वो बुरा इंसान है। और ये एक सोच जो हमें ट्रेडिशनल थ्योरी में हमें नजर आती है, एंड ट्रेडिशनल थ्योरी ये भी कहती है कि कॉन्फ्लिक्ट्स आर बैड। नाउ द थिंग इज कि ट्रेडिशनल थ्योरी के मुताबिक कॉन्फ्लिक्ट जो हैं उनका कोई बेनिफिट नहीं है, और जब भी कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे दिस इज नॉट गुड फॉर द ऑर्गेनाइजेशन एंड दिस इज नॉट गुड फॉर द एम्प्लॉय। तो ओवरऑल ट्रेडिशनल थ्योरी ने कॉन्फ्लिक्ट्स को
जो है प्रमोट करने की बात नहीं की, कॉन्फ्लिक्ट्स के बेनिफिट्स की बात नहीं की, बल्कि कॉन्फ्लिक्ट्स के डिसएडवांटेजेस के ऊपर फोकस किया. एंड फाइनली another point made by traditional theory is conflicts should be avoided. So एक तो ये है कि कहा गया कि कॉन्फ्लिक्ट ट्रबल मेकर्स क्रिएट करते हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स जो हैं वो बहुत बुरे होते हैं और कॉन्फ्लिक्ट्स को अवॉइड करने की ज़रूरत है, उसको इग्नोर करने की ज़रूरत है, उसको वहाँ से आप उसको मैनेज करने की बजाय आप उसको इग्नोर करें. तो जो ट्रेडिशनल थ्योरी है वो कॉन्फ्लिक्ट की जो डार्कर साइड है, जो उसकी डार्क पिक्चर को प्रेजेंट कर रही है और कॉन्फ्लिक्ट्स को एक नेगेटिव एंगल से उसको फोकस करने की कोशिश कर रही है ट्रेडिशनल थ्योरी. नाउ वी मूव ऑन टुवर्ड्स द मॉडर्न थ्योरी रिगार्डिंग कॉन्फ्लिक्ट, एंड दैट सेज दैट conflicts are expected between human beings. Now you see that this is a natural phenomena. So having conflict is not a bad thing. So having conflict is a natural human phenomena. So जो भी दो इंसान या दो से ज़्यादा लोग अगर एक जगह पे काम करेंगे, एक ऑफिस में काम करेंगे, whether it is public sector or private sector, whether it is Pakistan or abroad, दुनिया के किसी भी हिस्से में जो लोग दो या दो से ज़्यादा लोग जब काम करते हैं तो definitely they have conflicts. और because क्योंकि no two humans have same perceptions, no two humans have maybe same feelings, so people are different in their perceptions, people are different in their skills, people are different in their competences, people are different in the way they feel about different things, so people are different in their value systems, so things like that. So that is why people have different like for example perceptions, और basically वो परसेप्शन, ये तो तमाम पॉइंट जो मैंने डिस्कस किए ये परसेप्शन के अंदर आ जाते हैं. देन सो कॉन्फ्लिक्ट, हैविंग कॉन्फ्लिक्ट इज अ नेचुरल फिनोमिना, उसको आप अवॉइड नहीं कर सकते. एंड देन कॉन्फ्लिक्ट्स आर ऑफन बेनिफिशियल. सो कॉन्फ्लिक्ट से सिर्फ ये नहीं है कि कॉन्फ्लिक्ट्स आर बैड, कॉन्फ्लिक्ट से आप बेनिफिट ले सकते हैं, आप अपनी परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट कर सकते हैं. लाइक फॉर एग्जाम्पल जैसे पहले हमने बात की कि आई कैन इंप्रूव माई पॉइंट ऑफ व्यू if I include your point of view in my point of view. So this is really very important कि conflict को positive side पे आप लेके जाएं, आप improvement की तरफ लेके जाएं. Like for example आप एक project पे काम कर रहे हैं, आपने project report तैयार करनी है, आपने एक feasibility report बनानी है जिसके अंदर आपने resources की बात करनी है. और जब हमने अपने पिछले lectures में बात की कि there are 4 type of resources, आपके ज़हन में आ रहा है कि किन resources की हमने बात की थी? किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को, चाहे वो पब्लिक सेक्टर में है या प्राइवेट सेक्टर में है, दे नीड 4 टाइप ऑफ रिसोर्सेज, एंड दोज रिसोर्सेज आर ह्यूमन रिसोर्सेज, फाइनेंशियल रिसोर्सेज, फिजिकल रिसोर्सेज एंड इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज. सो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की जब हम बात करते हैं तो उनकी रिसोर्स मैनेजमेंट करने के लिए डेफिनेटली जब हम कहते हैं कि बहुत सारी जगहों पे हमने देखा पब्लिक सेक्टर में जहाँ पे कंप्लेंट्स की गई कि जी हमारे पास लैक ऑफ रिसोर्सेज हैं, लेकिन जहाँ पे रिसर्च किया गया वहाँ पे फाइंडिंग की गई कि रिसोर्सेज आर अवेलेबल लेकिन अंडर यूटिलाइजेशन है उन रिसोर्सेज की. अब आप ये अपने आप से क्वेश्चन करें कि ये कैसे मालूम हुआ कि रिसोर्सेज की अंडर यूटिलाइजेशन है? तो डेफिनेटली वहाँ पे रिसर्च की गई, वहाँ पे एक ट्रेनिंग नीड एनालिसिस किया गया, वहाँ पे रिसोर्स रिक्वायरमेंट्स को वहाँ पे देखा गया कि रिसोर्स रिक्वायरमेंट्स क्या हैं और रिसोर्स जो आपके रिसोर्सेज जो यूटिलाइज किए जा रहे हैं उनको चेक किया गया. जब उसको कंपेयर किया गया तो डेफिनेटली फीडबैक लिया गया. नाउ फीडबैक मीन्स कि जिन लोगों का डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू था रिसोर्सेज के बारे में, यूटिलाइजेशन के बारे में, उस पॉइंट ऑफ व्यू को उन लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू के साथ कंपेयर किया गया जो कहते थे कि वी लैक रिसोर्सेज, और उन लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू के साथ कंपेयर किया गया जिन्होंने कहा कि हमारे पास रिसोर्सेज हैं लेकिन उनको अंडर यूटिलाइज किया गया. तो जब इस तमाम डाटा को, इस तमाम इंफॉर्मेशन को आपस में मिलाकर एनालाइज किया गया, सो डेफिनेटली उसमें फिर जब रिसोर्सेज को, अंडर यूटिलाइज रिसोर्सेज को उनके फुल यूटिलाइजेशन उनकी की गई तो डेफिनेटली द रिजल्ट इज परफॉर्मेंस एनहांसमेंट. And then conflicts, according to the modern theory, conflicts are the natural result of change. Okay, change is the natural phenomena. जब आप change की बात करते हैं तो what comes in your mind? जी, आपके दिमाग में क्या आता है जब आप change की बात करते हैं? जब आप human resources की बात करते हैं, जब आप employees की बात करते हैं, the persons who are working in the organization at any level जब आप बात करते हैं, तो जब आप उनकी चेंज की बात करते हैं तो सबसे पहली चीज दैट इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज
the attitude and behavior of the people who are working in that organization. So change की जब हम बात करते हैं, human resource की change की बात करते हैं, so we think we talk about their change of their attitude and behavior. हमें attitude और behavior को positive करने की जरूरत है. This is the most important change we need in the public sector of Pakistan. And then we talk about technology. कि जो बेस्ट टेक्नोलॉजी अवेलेबल है उसको अडॉप्ट करने की ज़रूरत है, एंड एट द सेम टाइम न्यू टेक्नोलॉजी को क्रिएट और इनोवेट करने की ज़रूरत है. एंड फाइनली जब हम चेंज की बात करते हैं, स्ट्रक्चर इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट. कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो हमने बात की अपने प्रीवियस लेक्चर्स में कि रूल्स ऑफ बिजनेस हैं, देयर आर सर्टन रूल्स एंड रेगुलेशंस, इसके तहत पब्लिक सेक्टर ऑफ पाकिस्तान काम कर रहा है. तो इन तमाम रूल्स एंड रेगुलेशंस को जो हमारा ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है इसके अंदर इम्प्रूवमेंट लाने की ज़रूरत है. और जैसे हम हमेशा कहते हैं, and it's a universal phenomena that change of structure, because change of structure, like हम जब change of structure की बात करते हैं तो improvement in the structure of an organization is an ongoing thing. So it is not possible कि आप एक अपने rules and regulations में एक दफ़ा आप change लेके आए and that's enough. So it's not enough. Having a positive change is an ongoing process, और with the passage of time आप अपनी positive changes लेके आते जाएंगे, क्योंकि जो target market है जिसको public sector of पाकिस्तान address कर रहा है और public sector of पाकिस्तान entire पाकिस्तान को address कर रहा है, तो जब entire पाकिस्तान की जब हम बात करते हैं और जो definitely हमारी जो मिनिस्ट्रीज़ हैं, जब हम फॉरेन मिनिस्ट्री की बात करते हैं तो उन्होंने अपने जो रिलेशनशिप हैं वो अपने नेबर कंट्री के साथ, जो हमारे फ्रेंडली रिलेशंस हैं जिन कंट्रीज़ के साथ, उनके साथ जब रिलेशनशिप्स की बात करते हैं तो डेफिनेटली वहाँ पे हमें किस चीज़ की ज़रूरत है कि हमें एक पॉजिटिव चेंज की ज़रूरत है, ताकि हम अपनी एटीट्यूड बिहेवियर में, अपनी टेक्नोलॉजी में और अपने जो रूल्स हैं उनके अंदर अकॉर्डिंग टू आवर टारगेट मार्केट हम पॉजिटिव चेंजेस लेके आए. सो चेंज इज़ डिपेंडेंट ऑन द टारगेट मार्केट. So it is not dependent on the employees who are working in the organization. So यहाँ पे ये पॉइंट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जिसको आप इसके ऊपर थोड़ा सा फोकस ज़्यादा यहाँ पे ज़रूरत है कि चेंज, जब हम ऑर्गेनाइजेशन के अंदर चेंज लाने की बात करते हैं तो चेंज इज टोटली डिपेंडेंट ऑन द टारगेट मार्केट. नॉट टारगेट मार्केट में जो पाकिस्तानी पब्लिक सेक्टर है, जो इंटायर पाकिस्तान की हम बात करते हैं या दूसरे मुल्कों के साथ जो हमारे ताल्लुकात हैं, जब हम उसकी बात करते हैं तो हमारी चेंज डिपेंडेंट होगी हमारी टारगेट मार्केट के अंदर जो चेंज आ रही है. सो इट मीन्स द टारगेट मार्केट डिसाइड्स, पीपल ऑफ पाकिस्तान डिसाइड्स कि क्या चेंजेस की ज़रूरत है. तो मीनिंग दैट कि ग्राउंड रियलिटी जो है पाकिस्तान में, ग्राउंड रियलिटी को सामने रख के हम चेंज लेके आएंगे. और जब हम ग्राउंड रियलिटी को सामने रख के चेंज लेके आएंगे अपने एटीट्यूड बिहेवियर में, टेक्नोलॉजी में और अपनी स्ट्रक्चर में, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस में चेंज लेके आएंगे, तो डेफिनेटली वी कैन इम्प्रूव परफॉर्मेंस ऑफ आवर ऑर्गेनाइजेशंस इन पाकिस्तान एज वेल. एंड देन after we talk about the change, we move towards conflicts can and should be managed. So this is really very important when we talk about conflicts, that conflicts can and should be managed. So if you think that conflicts can be managed, cannot be managed, if you think like this, so this is not a good point of view. All conflicts can be managed. So it really depends, जैसे हमने पहले बात की कि how you think about the situation, what is your perception about the situation. So as I will repeat that problem is not a problem. The way you look at the problem is the real problem. So the thing is, the way you look at conflict is really very important. So if you think that you cannot solve the conflicts or you cannot manage the conflict, unfortunately फिर आप उसको कैसे मैनेज करेंगे. बट इफ यू थिंक दैट कि यू कैन मैनेज कॉन्फ्लिक्ट वेल एंड यू कैन लाइक फाइंड सॉल्यूशंस एंड यू कैन कन्विंस पीपल, यू कैन मोटिवेट पीपल और कॉन्फ्लिक्ट्स को आप उससे बेनिफिट ले सकते हैं. सो दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट. वी नीड टू बी हाईली ऑप्टिमिस्टिक व्हेन वी आर डीलिंग विद कॉन्फ्लिक्ट्स. नाउ we move on to different types of conflict here. Like for example, हम different types की जब हम बात करते हैं, the first style here is the differences in style. Like for example, people's style for completing a job can differ. Like for example, one person may just want to get the work done quickly
task oriented, while another person is more concerned about having it done a particular way, for example artistic. तो यहाँ पे हमने देखा दो तरह के लोग, एक पर्सन जो है वो ये चाहता है कि काम को किसी तरह भी जल्दी कंप्लीट किया जाए, चाहे उसमें क्वालिटी हो या ना हो, और दूसरा पर्सन जो उसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है वो चाह रहा है कि एक आइडियल काम किया जाए, एक आर्टिस्टिक काम किया जाए, और इस तरह का काम किया जाए कि इस तरह का काम पहले कभी किसी ने ना किया हो. सो आइडियल एक आर्टिस्टिक जब हम उसके साथ उसको कंपेयर कर रहे हैं. सो डिफरेंसेस इन स्टाइल. तो जब ये दो तरह के लोग, एक पर्सन जो जल्दी काम खत्म करना चाह रहा है किसी भी सूरत में क्वालिटी हो या ना हो, और दूसरा पर्सन जो क्वालिटी पे कंप्रोमाइज नहीं करना चाहता, जब ये दोनों लोग एक जगह पे काम करते हैं तो डेफिनेटली द रिजल्ट इज कॉन्फ्लिक्ट बिकॉज ऑफ देयर डिफरेंट स्टाइल्स ऑफ डूइंग ए जॉब. एंड देन डिफरेंसेस इन बैकग्राउंड एंड जेंडर. Conflicts can arise between people because of differences in educational backgrounds, personal experiences, gender and political preferences. So this is really very important कि लोगों के gender differences की वजह से, उनके educational differences की वजह से, उनकी political preferences की वजह से या personal experience की वजह से they have conflict. Like for example, talking about your educational background के अगर एक पर्सन का एजुकेशनल बैकग्राउंड जो है वो डिफरेंट है और दूसरे का एजुकेशनल बैकग्राउंड डिफरेंट है, आपके पॉलिटिकल प्रेफरेंसेस क्या हैं, एक पर्सन जो है वो ए पार्टी को लाइक करता है, दूसरा पर्सन जो है वो बी पार्टी को लाइक करता है, पॉलिटिकल पार्टी को, तो तीसरा पर्सन है वो सी पार्टी को लाइक करता है. तो जब ये उनके पर्सनल एक्सपीरियंसेस डिफरेंट होते हैं एंड देन मेल्स एंड फीमेल्स आर वर्किंग एट द सेम प्लेस, तो ये सब फैक्टर्स जब एक जगह हम एक देखते हैं तो डेफिनेटली द रिजल्ट इज कि ड्यू टू द डिफरेंस इन योर बैकग्राउंड एंड ड्यू टू जेंडर डिफरेंसेस ऑफ कोर्स we have conflicts in the public sector of Pakistan जो हम बात कर रहे हैं. And then differences in personality. This type of conflict is often fueled by emotions and perceptions about somebody else's motives and character. For example, a team leader jumps on someone for being late because he perceives the team member as being lazy. The team member sees the team leader as being irrational. So now you see that same situation. अगर कोई लेट आता है तो टीम लीडर ये उसके बारे में उसकी सोच है कि दिस पर्सन इज लेजी एंड दिस पर्सन इज इररिस्पॉन्सिबल, और वो जो है वो अपने काम के साथ इंसाफ नहीं कर रहा. सो टीम लीडर की एक अपनी थिंकिंग है उस पर्सन के बारे में जो कि लेट आया. ऑन द अदर साइड जो टीम मेंबर जो कि लेट आया अपने ऑफिस में, अपने काम पे लेट आया है, वो जो टीम लीडर को इररेशनल समझता है कि जी मैं एक लॉजिक दे रहा हूँ, मेरे पास लेट आने की एक वजह है, लेकिन जो टीम लीडर साहब हैं ये मेरी उस रीज़न को जाने बगैर ये मेरे बारे में जो कमेंट्स दे रहे हैं दिस इज इररेशनल, और वो किसी लॉजिक के बगैर है. सो नाउ यू सी दैट कि जब हम ये डिफरेंसेस इन पर्सनालिटी की जब हम बात करते हैं कि हाउ यू थिंक अबाउट द सेम सिचुएशन. सो लीडर की एक डिफरेंट थिंकिंग है लेट आने पे टीम मेंबर के, और टीम मेंबर जो है वो फोकस कर रहा है कि जो लॉजिक है और उसको इम्पोर्टेंस दी जाए, लेट आने की वजह को डिस्कस किया जाए, उसको पूछा जाए, बजाय ये कि आप एक ऑलरेडी माइंडसेट बना लें कि जो लोग ऑफिस में लेट आते हैं दे आर ऑलवेज लेजी. सो इस डिफरेंस की वजह से भी एक कॉन्फ्लिक्ट जो है वो क्रिएट होता है. सो दिस इज अनदर टाइप ऑफ कॉन्फ्लिक्ट एंड वी कॉल इट differences in personality. Then another type of conflict is interdependence conflict. Like for example, a person's job depends on someone else's cooperation, output or input. So now you see that this is really very important कि आपकी जॉब किसी और पे डिपेंड करती है. For example, a salesperson is constantly late inputting the monthly sales figures, which causes the accountant to be late with his reports. तो now you see that जो सेल पर्सन का काम है और जो अकाउंटेंट का काम है वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड कर रहा है. सेल पर्सन जब तक के फीडिंग नहीं करेगा, इनपुट नहीं करेगा मंथली सेल्स को डेटाबेस में, उस वक्त तक अकाउंटेंट अपना काम नहीं कर सकता, अपनी रिपोर्ट नहीं बना सकता. तो मीनिंग दैट कि अगर वो सेल पर्सन लेजी होता है, अगर वो सेल पर्सन स्लो काम करता है, तो उसका जो एक नेगेटिव इम्पैक्ट है वो अकाउंटेंट की जॉब के ऊपर है कि जो टॉप मैनेजमेंट है वो ये
शायद रियलाइज कर सकती है यहाँ पे कि अकाउंटेंट जो है वो भी स्लो है और जो सेल पर्सन है वो भी स्लो है। लेकिन जहाँ इस सिचुएशन में हम देख रहे हैं कि सेल पर्सन के लेजीनेस की वजह से अकाउंटेंट के काम का हर्ज हो रहा है, अकाउंटेंट अपनी टाइम पे इन टाइम रिपोर्ट्स नहीं दे सकता। सो एक इंटरडिपेंडेंस हमें नजर आ रही है और इसकी वजह से सेल पर्सन और अकाउंटेंट में एक कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है ड्यू टू दिस फैक्टर। एंड देन वी टॉक अबाउट अनदर टाइप ऑफ कॉन्फ्लिक्ट एंड दैट इज differences in leadership. So leaders have different styles. Employees who change from one supervisor to another can become confused. For example, one leader may be more open and delegate a responsibility, while another leader may be more directive. For an employee, it becomes a conflict situation. So now you see that कि आप एक लीडर के साथ काम करते हैं, अपने एक बॉस के साथ काम करते हैं, उसका एक डिफरेंट एक स्टाइल है, वो अथॉरिटी को डेलीगेट कर रहा है, वो आपको फ्री हैंड दे रहा है, वो आपको कह रहा है कि आप आई नीड द रिजल्ट्स, आई वांट यू टू कंप्लीट द टारगेट्स इन टाइम, तो वो आपको फ्लेक्सिबिलिटी दे रहा है। लेकिन अगर आप किसी और लीडर के साथ, किसी और सुपरवाइजर के साथ काम करते हैं और वो ज़्यादा आपको क्लोज मॉनिटरिंग कर रहा है, आपकी टाइट सुपरविजन कर रहा है और वो हर वक्त आपको ऑर्डर देता रहता है, तो डेफिनेटली एम्प्लॉयज जो हैं दे बिकम कंफ्यूज्ड। सो ड्यू टू डिफरेंसेस इन लीडरशिप एम्प्लॉयज के दरमियान वहाँ कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो सकता है और एम्प्लॉयज और लीडर के दरमियान, टीम लीडर के दरमियान कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो सकता है। सो दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट टू नो द डिफरेंसेस इन लीडरशिप, और जब आप इस डिफरेंसेस को अंडरस्टैंड करते हैं तो वी आर एबल to manage any conflict situation. Now the next point I'm going to discuss here is how we are going to resolve conflicts, because having conflict is a natural phenomena. किसी भी organization के अंदर पूरी दुनिया में, whether it is public sector or private sector, there are conflicts. Now we are going to resolve these conflicts, and there is a certain procedure. Now these are the 5 steps, and with the help of these 5 steps we can solve our conflicts at our workplace. For instance, the first step is set the scene. Understand the situation rationally. तो आप एक लॉजिकल एक जायजा लें, जो प्रेजेंट सिचुएशन है उसको अंडरस्टैंड करें कि एक प्रेजेंट सिचुएशन है क्या, और इस प्रेजेंट सिचुएशन में आप देखें कि क्या फैक्टर्स थे जिसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट हुआ। तो प्रेजेंट सिचुएशन को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें। दिस इज द फर्स्ट स्टेप। Step 2 is gather information, understand each other's needs and concerns. कि आप ये देखें कि हम सब की ऑर्गेनाइजेशन के अंदर नीड्स क्या हैं और हमारे कंसर्न्स क्या हैं, हम चाहते क्या हैं, हम किस चीज़ को वैल्यू दे रहे हैं, किस चीज़ का हम किस चीज़ के बारे में ज़्यादा कंसर्न है, इस चीज़ के बारे में आप एक इंफॉर्मेशन गैदर करें। एंड स्टेप 3 इज एग्री टू अ प्रॉब्लम, डिफाइन ए म्यूचुअल प्रॉब्लम। आपस में बैठ के एक चीज़ तय करें कि व्हाट इज द कॉमन प्रॉब्लम वी आर फेसिंग, और जब कॉमन प्रॉब्लम को, म्यूचुअल कॉमन प्रॉब्लम को आपने डिफाइन करना है यहाँ पे कि जो मेरी भी प्रॉब्लम है और आपकी प्रॉब्लम है। लाइक फॉर एग्जांपल वी मे हैव डिफरेंट प्रॉब्लम्स, बट उन प्रॉब्लम में से कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो सिमिलर हैं, कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो मेरी और आपकी प्रॉब्लम सेम है अगर हम एक ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं। एंड द नेक्स्ट स्टेप 4 इज ब्रेनस्टॉर्म पॉसिबल सॉल्यूशंस। थिंक ऑफ ऑल द पॉसिबल सॉल्यूशंस हियर। दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। ब्रेनस्टॉर्मिंग इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट कि एम्प्लॉयज को आपने कहना है कि दे शुड गिव देयर वंडरफुल आइडियाज। तो ब्रेनस्टॉर्मिंग में क्या करते हैं, ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन में कि जो एम्प्लॉयज हैं, जो उस डिपार्टमेंट के, उस ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज, उनको एक जगह इकट्ठा किया जाता है, उनको कहा जाता है कि वो डिफरेंट अल्टरनेटिव्स दें हाउ टू सॉल्व द प्रॉब्लम, जो कि आइडेंटिफाई किया पिछले स्टेप नंबर 3 में। तो स्टेप नंबर 3 में जो हमने एक कॉमन सिमिलर प्रॉब्लम को म्यूचुअली एग्री किया है, उसको सॉल्व करने के लिए व्हाट आर द पॉसिबल सॉल्यूशंस, उसके लिए डिफरेंट अल्टरनेटिव्स जो हैं, हर एम्प्लॉय एक अपनी राय दे रहा है। तो तमाम अल्टरनेटिव्स को, तमाम ऑप्शंस को आपने वेलकम करना है, उसको डिस्कस करना है। एंड देन स्टेप नंबर 5 इज नेगोशिएट अ सॉल्यूशन, कम टू सॉल्यूशन दैट इज एग्रीड बाय बोथ द ग्रुप्स। सो दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट कि जिन 2 ग्रुप्स का या 2 इंडिविजुअल्स का आपस में कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, उसको सॉल्व करने के लिए दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट कि जो बेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन है, जो कॉन्फ्लिक्ट के अंदर जो दोनों पार्टीज इन्वॉल्व हैं, वो दोनों के लिए म्यूचुअली एग्रीएबल हो।
सो अगर म्यूचुअल एग्रीमेंट नहीं होगा सोल्यूशन के ऊपर तो डेफिनेटली उस सोल्यूशन को आप अप्लाई नहीं कर सकते, वो सस्टेन नहीं होगा। सो दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट कि आप पॉसिबल सॉल्यूशंस को आइडेंटिफाई करें और उनमें से निगोशिएट करें जो बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन है इन ऑर्डर टू सॉल्व द कॉन्फ्लिक्ट, जो कि तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं उन सबको वो एक्सेप्टेबल हो। सो इफ द सिचुएशन रिमेन्स ए कॉन्फ्लिक्ट, अब आपने क्या किया कि आपने तमाम 5 स्टेप्स को अप्लाई किया। अगर इन तमाम 5 स्टेप्स को अप्लाई करने के बावजूद अगर कॉन्फ्लिक्ट जो है वो सॉल्व नहीं होता, सो व्हाट यू नीड टू डू, then consider seeking a third party to mediate. Now here comes the role of a mediator. So mediator means a person who acts as a bridge. Like for example party A and party B, इन दोनों का आपस में conflict है, so इन दोनों parties को एक टेबल पे लाने के लिए एक ब्रिज की जरूरत है, और मीडिएटर इज अ पर्सन जो दोनों पार्टीज के कंसर्न्स को एक दूसरे को बताता है और एज ए ब्रिज एक्ट करता है ताकि वो दोनों पार्टीज मिलके एक सोल्यूशन की तरफ मूव करें, एक म्यूचुअल सोल्यूशन की तरफ मूव करें। सो मीडिएटर जॉब इज लाइक अ ब्रिज। नाउ इफ आफ्टर मीडिएशन अगर फिर भी कॉन्फ्लिक्ट जो है वो सॉल्व नहीं होता, सो द फाइनल सोल्यूशन इज देन वी नीड एन आर्बिट्रेटर। नाउ जब हम पब्लिक सेक्टर ऑफ पाकिस्तान की बात करते हैं तो द आर्बिट्रेटर हियर इज द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। नाउ आर्बिट्रेटर जो है, आर्बिट्रेटर हैज द अथॉरिटी टू डिसाइड। तो आर्बिट्रेटर आके अपना तमाम सिचुएशन को दे ऑब्जर्व एंड देन दे एनालाइज एंड देन दे कम अप विद द डिसीजन, और उस डिसीजंस को दे इम्प्लीमेंट। सो हमने जब बात की कि नंबर 1 स्टेप से लेके नंबर 5 स्टेप तक आप अप्लाई करते हैं, अगर तो ये इसकी मदद से आप कॉन्फ्लिक्ट को सॉल्व कर लेते हैं, दैट इज वंडरफुल। अगर फिर भी कॉन्फ्लिक्ट सॉल्व नहीं होता, देन यू मूव टुवर्ड्स मीडिएटर। मीडिएटर इज लाइक ए ब्रिज जो कि दोनों पार्टीज को एग्रीएबल टर्म्स पे लाने की कोशिश करता है, और मीडिएटर इज in all cases is a neutral person, unbiased person, जो कि पार्टी ए या पार्टी बी को फेवर नहीं कर रहा होता बल्कि एक एज ए न्यूट्रल पर्सन वहां पे एक्ट कर रहा होता है, मीडिएट कर रहा होता है। अगर मीडिएटर जो है वो सक्सेसफुल ना हो, देन द कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन जो है वो इट मूव्स टुवर्ड्स दैट आर्बिट्रेटर। नाउ इन पाकिस्तान द आर्बिट्रेटर इज द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो है वो पे डिसाइड करती है कि व्हाट इज द मोस्ट लाइक एक्सेप्टेबल सोल्यूशन जो दोनों पार्टीज को एक्सेप्टेबल हो। तो एज ए आर्बिट्रेटर दे हैव द डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी हियर। नाउ we keep on discussing how to resolve conflicts, and another thing we can do here is recognize conflict is a process to be managed, not avoided or eliminated. तो अगर आप conflict के बारे में सोचेंगे कि इसको eliminate कर दिया जाए या इसको avoid किया जाए, that is not a good way. जैसे हमने traditional theory of conflict की बात की और modern theory of conflict की बात की, तो this is really very important कि हम मॉडर्न थ्योरी के जो प्रिंसिपल्स हैं उसको फॉलो करें और कॉन्फ्लिक्ट को एलिमिनेट करने की बजाय, अवॉइड करने की बजाय उसको मैनेज करने की हम कोशिश करें। कॉन्फ्लिक्ट इज अ प्रॉब्लम टू बी सॉल्व्ड, नॉट ए बैटल टू बी वन। वेरी इंपॉर्टेंट कि कॉन्फ्लिक्ट को आपने सॉल्व करना है, ना कि आपने जंग जीतनी है। सो इसको सक्सेस एंड फेलियर की बजाय आप सोल्यूशन की तरफ लेके जाएं, बजाय ये कि आप ये कहें कि जी मेरी सक्सेस है या आपकी सक्सेस है या मेरा फेलियर है या आपका फेलियर है। बजाय सक्सेस एंड फेलियर के सोल्यूशंस की तरफ हमें मूव करना है, एंड देन स्टे फोकस्ड ऑन द प्रॉब्लम और इशू टू बी सॉल्व। वेरी इंपॉर्टेंट है कि जो प्रॉब्लम है या जो इशू है उसके ऊपर फोकस रहें। ये ना हो कि एक कॉन्फ्लिक्ट को सॉल्व करते हुए आप कई और तरह के कॉन्फ्लिक्ट जो हैं वहां पे क्रिएट कर दें। सो दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट कि जो प्रॉब्लम है उसके ऊपर फोकस किया जाए और जो इशू है जिसको सॉल्व करना है उसके ऊपर फोकस किया जाए, और अननेसेसरी इररेलेवेंट दूसरे इश्यूज को बीच में ना लेके आया जाए। सो इन दिस वे वी कैन बेटर सॉल्व द कॉन्फ्लिक्ट्स। सो आस्क ओपन एंडेड क्वेश्चंस। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज डू नॉट गो फॉर क्लोज एंडेड क्वेश्चन। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जैसे एग्जाम अक्सर आप देते हैं, तो एग्जाम में जो एक क्वेश्चनिंग होती है कि लाइक फॉर एग्जांपल इन फॉलोइंग 3-4 चॉइसेस हैं, किसी एक को आप टिक करें।
दैट इज कॉल्ड क्लोज एंडेड क्वेश्चन। जब आप ओपन एंडेड क्वेश्चंस की बात करते हैं, इसका मतलब ये है कि नीचे चॉइसेस नहीं दिए होते बल्कि आपके कमेंट्स मांगे गए होते हैं, आपकी सजेशंस मांगी गई होती हैं और अपना पॉइंट ऑफ व्यू वहां पे आप लिख सकते हैं। सो आप अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू देते हैं, आप अपनी फीलिंग्स को कम्युनिकेट करते हैं, अपनी सजेशंस को कम्युनिकेट करते हैं। और ओपन एंडेड क्वेश्चंस में डेफिनेटली बहुत सी ऐसी चीजें फीडबैक आपको मिल जाती है जिसकी मदद से आप कॉन्फ्लिक्ट को बेहतर तरीके से मैनेज कर सकते हैं। लिसन एक्टिवली, very important. People who do not listen well, they are not good decision makers. So listening actively at workplace can help you avoid many conflict situation. तो अगर आप conflicts को चाहते हैं कि बेहतर तरीके से आप मैनेज करें, आप बेहतर तरीके से उन conflict को एक पॉजिटिव साइड पे लेके जाएं, conflicts को आप एक उससे बेनिफिट लेने की कोशिश करें। सो उसका एक तरीका ये है कि पहले दूसरे की बात को आप अंडरस्टैंड करें और अंडरस्टैंड करने के लिए ज़रूरी है कि आप एक्टिव लिसनिंग करें। कीप इमोशंस इन कंट्रोल, वेरी इंपॉर्टेंट। अक्सर ये देखा गया कि कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन में पीपल गेट इमोशनल, दे लूज देयर टेम्पर और फिर एक जो हम कहते हैं कि सर्टन हमारी बाउंड्रीज हैं हमारे कल्चर की, हमारे रिलीजन की, तो कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन में कुछ लोग उससे बाहर निकलने की कोशिश करते हैं और वो ऐसी लैंग्वेज यूज़ करते हैं जो कि अनएथिकल किस्म की लैंग्वेजेस हैं। तो वहाँ पे हमें कोशिश ये करनी है कि हम अपने टेम्पर को कंट्रोल में रखें, अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखें, बहुत ज़्यादा जज्बाती ना हो, अपने जज्बात को कंट्रोल में रखें और कोशिश ये करें कि लॉजिक के साथ आप बात करें, अपने वॉल्यूम को लो रखें, आप अपने इमोशंस को लो रखें और लॉजिक्स के ऊपर आप फोकस करें, दूसरे की बात को गौर से सुनें और अपने पॉइंट्स को लॉजिक के साथ जब आप प्रेजेंट करेंगे तो देयर आर चांसेस कि कॉन्फ्लिक्ट को आप बेहतर तरीके से मैनेज कर सकते हैं। सेपरेट पीपल फ्रॉम द प्रॉब्लम, अगेन जो एक बहुत बड़ी मिस्टेक या ब्लंडर हमें नजर आता है कि जब लोग कॉन्फ्लिक्ट को मैनेज करने की कोशिश करते हैं तो वो प्रॉब्लम को और जो एम्प्लॉई है उसको एक ही समझ लेते हैं कि ये जो एक प्रॉब्लम है ये किसी मिस्टर ए की वजह से आ रही है या मिस बी की वजह से आ रही है। तो ये बजाय ये कि आप लोग अपने एम्प्लॉयज़ को और प्रॉब्लम को एक ही समझना शुरू कर दें, आई थिंक कि हमें ये देखना है कि जो कॉन्फ्लिक्ट है वो ऑफिस की किसी पॉइंट ऑफ व्यू, एक डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है, काम करने का एक डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है। लाइक फॉर एग्जांपल जैसे हमने कहा सेल्स पर्सन और अकाउंटेंट की हमने बात की कि अगर सेल पर्सन स्लो काम करता है तो अकाउंटेंट का काम जो है वो डिले हो जाता है। एंड सो इंटरडिपेंडेंस जब आ जाती है तो डेफिनेटली उनके दरमियान एक कॉन्फ्लिक्ट आ जाएगा। तो बजाय ये कि आप उसको इंडिविजुअल उसको फोकस करना शुरू कर दें, किसी के ऊपर पर्सनल अटैक करने शुरू कर दें, उसकी बजाय प्रॉब्लम पे फोकस किया जाए कि हम अपने सिस्टम को कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, अपनी एक्टिव वर्किंग को किस तरीके से इंश्योर कर सकते हैं ताकि काम में डिलेज ना है। तो प्रॉब्लम पे फोकस करना है, ना कि आपने किसी इंडिविजुअल पे फोकस करना है। एंड देन फोकस ऑन इंटरेस्ट, मोटिवेशन इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। वी मस्ट सी दैट कि जो लोग पब्लिक सेक्टर में काम कर रहे हैं उनका क्या इंटरेस्ट है, वो किस चीज़ को फोकस कर रहे हैं और डेफिनेटली उनके जब इंटरेस्ट को आप देखेंगे, उनकी वांट्स को आप देखेंगे, उनके किन चीज़ों को वो चाहते हैं कि उनको मिलें, कौन सी वांट्स हैं जो फुलफिल करना चाहते हैं। सो जब आपको उनके इंटरेस्ट का पता होगा तो डेफिनेटली आप कॉन्फ्लिक्ट को बेहतर तरीके से मैनेज कर सकते हैं, क्योंकि ऑफ कोर्स रिवॉर्ड मैनेजमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट when you go for solving problems. And then use ground rules. ग्राउंड रियलिटी को किसी सूरत में इग्नोर नहीं करना चाहिए और डेफिनेटली जब हम ग्राउंड रियलिटी की बात करते हैं तो डेफिनेटली हमने अपना फोकस बहुत क्लियर रखना है कि ग्राउंड रियलिटी क्या है। एक तरफ हमारे रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं और दूसरी तरफ एक ग्राउंड रियलिटी है। तो डेफिनेटली हमने देखना ये है कि ग्राउंड रियलिटी के मुताबिक जब हम डिसीजंस लेंगे तो कॉन्फ्लिक्ट को हम बेहतर मैनेज कर सकते हैं। Now we talk about different conflict styles. Here you see this graph on x-axis we see that goals and on the y-axis we see the relationships. Now we have 1 to 4 different conflict styles and the first one is the turtle style. जब हम turtle conflict style की बात करते हैं तो let us discuss this style. The first thing I need to discuss about this turtle style of conflict is turtle means withdrawing here. So turtles, so these type of people
दे अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट एट ऑल कास्ट। तो ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर कुछ लोग ऐसे काम करते हैं कि वो कॉन्फ्लिक्ट को हर सूरत में अवॉइड करना चाहते हैं, वो उसको इग्नोर करना चाहते हैं, वो उसको फेस नहीं करना चाहते। सो दे गिव अप देयर पर्सनल गोल्स एंड रिलेशनशिप्स। वो अपने पर्सनल गोल्स को, अपनी रिलेशनशिप को भी दाव पे लगा देते हैं बिकॉज दे डू नॉट वांट टू फेस द कॉन्फ्लिक्ट। सो दीज पीपल दे बिलीव इट इज होपलेस टू ट्राई टू रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट। सो वो अपनी उम्मीद छोड़ देते हैं, नाउमीद हो जाते हैं कि इस कॉन्फ्लिक्ट को किसी तरीके से सॉल्व किया जा सकता है, एंड दे फील हेल्पलेस एंड दे सो दीज पीपल दे आर ईजियर टू विदड्रॉ from conflict. So they withdraw from conflict, so it looks very easy to them कि conflict से वो withdraw कर जाएं बजाय ये कि वो conflict को face करें। And this conflict style is called shark. And then when we talk about this shark style of conflict, now here it means that these type of people, they try to overpower opponents by forcing them to accept their solutions. Shark style जिनका है जो conflict का, what they do is they impose their decisions. जैसे आपने अक्सर सुना होगा कि मैंने जो कह दिया है ऐसे ही होगा। तो जब जो लोग इस तरह की लैंग्वेज यूज करते हैं, oral communication, written communication जब आप यूज करते हैं, तो these people are called they are having shark style of leadership conflict, or then these people are not concerned with needs and needs of others. So उनको कोई फर्क नहीं पड़ता ऐसे लोगों को कि दूसरों की क्या नीड्स हैं। They do not care about how others perceive them. उन ऐसे लोगों को बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता कि दूसरे उनके बारे में क्या सोच रहे हैं, दूसरों की इनके बारे में क्या परसेप्शन है। वो हर वक्त अपने बारे में सोचते रहते हैं और दूसरों की इनको बिल्कुल परवाह नहीं होती। These people believe in winning and losing. ऐसे लोग winning and losing को फोकस कर रहे होते हैं। वो ये फोकस कर रहे होते हैं कि या आर या पार, कि जो चीज़ है या इसमें सक्सेस होनी है या फेलियर होना है, और वो जो एक सोल्यूशन की तरफ आने की बजाय विनिंग एंड लूजिंग पे बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। एंड देन विनिंग गिव्स देम अ सेंस ऑफ प्राइड। और जब ये लोग विन करते हैं तो इनको सेंस ऑफ प्राइड होता है, ये बहुत ज़्यादा प्राउड हो जाते हैं। एंड देन दे ट्राई टू विन बाय अटैकिंग एंड थ्रेटनिंग अदर्स। तो विन करने के लिए अपने हक में बात करने के लिए, कॉन्फ्लिक्ट को अपनी मर्जी से सॉल्व करने के लिए, ये वो लोग हैं जो अटैक भी करते हैं दूसरों के ऊपर, दूसरों को थ्रेट भी करते हैं, धमकी भी देते हैं, दूसरों को इम्पोज करते हैं उनके ऊपर डिसीजंस, और उनके ऊपर एक किस्म की एक इम्पोज कर देते हैं कि जो मैंने कहा है वैसे ही होगा और दूसरी कोई चीज़ एक्सेप्टेबल नहीं है। जब ये इस किस्म की जो है अपना ओपिनियन देते हैं, इस किस्म की सजेशंस देते हैं, तो ऑफ कोर्स इसका एक इम्पैक्ट देते हैं कि पूरी ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर क्या इम्पैक्ट होता है। तो ये आप देखें कि ओवरऑल जब हम बात करते हैं कि जो शार्क स्टाइल ऑफ कॉन्फ्लिक्ट है, इसके अंदर ये लोग जो हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर या अपने डिसीजंस को, अपनी थिंकिंग को, अपनी परसेप्शन को पूरी ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर इम्पोज करने की कोशिश करते हैं और इस पर ये प्राउडनेस फील करते हैं। द नेक्स्ट कॉन्फ्लिक्ट स्टाइल इज ऑफ टेडी बियर। जब हम टेडी बियर की बात करते हैं, सो दीज टाइप ऑफ पीपल relationships are really most important and goals of little importance. तो टेडी बियर टाइप के जब लोगों की बात करते हैं, इस कॉन्फ्लिक्ट स्टाइल की जब हम बात करते हैं, तो ये वो एम्प्लॉइज हैं जो रिलेशनशिप्स को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं और गोल्स को कम इंपॉर्टेंस देते हैं। ये कहते हैं कि ताल्लुकात खराब नहीं होने चाहिए, ऑफिस का काम बाद में भी हो सकता है, ऑफिस के काम का हर्ज हो जाए लेकिन ताल्लुकात खराब नहीं होने चाहिए। सो पर्सनल रिलेशनशिप को दे आर गिविंग मोर इंपॉर्टेंस एज कंपेयर टू the goals of the organization. They want to be accepted and liked by other people. So ये वो लोग हैं जो most popular होते हैं, ये वो लोग हैं जो चाहते हैं कि लोग उनको पसंद करें, उनकी तारीफ करें और किसी भी कीमत पर। उसके लिए उनको कोई भी अपनी ऑर्गेनाइजेशन का गोल अगर सेक्रीफाइस करना पड़े, कंप्रोमाइज करना पड़े, so they are willing to do that. These people believe conflict should be avoided in favor of harmony. ये वो लोग कहते हैं कि हार्मनी होनी चाहिए, आपस में कोऑपरेशन, कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए, एक दूसरे के साथ हमेशा जो है वो कोई जायज़ बात कर रहा है, नाजायज़ बात कर रहा है, उसके ऊपर स्टैंड लेने की बजाय आप उसको एग्री करें हर बात के साथ, चाहे वो जायज़ है, नाजायज़ है, क्या करेक्ट है, इनकरेक्ट है, अगर कोई ऑनेस्ट है, डिसऑनेस्ट है, अगर
सो द थिंग इज कि टेडी बियर टाइप के लोग जो हैं जिनको कहते हैं कि दिस इज अनदर कॉन्फ्लिक्ट स्टाइल, कि यहाँ पे वो हार्मनी की बात कर रहे हैं, आपस में ताल्लुकात की रिलेशनशिप को स्ट्रेंथन करने की बात कर रहे हैं, एंड देन दे आर फीयरफुल दैट कॉन्फ्लिक्ट विल हर्ट समवन। ये वो लोग हैं जो किसी को हर्ट नहीं करना चाहते, जो किसी को परेशान नहीं करना चाहते, जो सबको राजी करना चाहते हैं, जो सबको खुश देखना चाहते हैं। उस खुशी के लिए, उस राजी करने के लिए, सबको लाइक ताल्लुकात उनके सबके साथ बेहतर रखने के लिए दे आर विलिंग टू लाइक sacrifice any of the organizational goals. And then we talk about another conflict style which is called Fox. Now Fox style means that these people are compromising, like moderately concerned with relationships and goals. ये बड़े जो एक हम कहते हैं कि moderate हैं, एक बड़ा बैलेंस करके चलते हैं रिलेशनशिप और गोल्स के साथ, willing to sacrifice part of their goals and relationships in order to find agreement for the common good. तो common good के लिए ये अपने goals और अपनी relationship को sacrifice करने के लिए partially तैयार होते हैं. And finally we talk about another conflict style of people in organization, and that is called owl. Now according to this style of conflict, these people are more collaborating. Like for example, these people, they value goals and relationship. So this is really very important that these people, they value goals and they value relationships. So there we see a balanced approach here. Now these people view conflicts as problems to be solved. ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे होते हैं, ना कि प्रॉब्लम्स को इंक्रीज करने के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं. सो इट मीन्स दैट दीज पीपल आर मोर ऑप्टिमिस्टिक. So these people see conflicts as improving relationships by reducing tension. So this is really very important कि relationship improvement के लिए और reducing tension के लिए ये working करते हैं, and they try to seek solutions that satisfy both parties. तो जिन parties के दरमियान conflict है तो ये solutions पे mutual common जो दोनों parties को जो acceptable हो solutions उसकी ये बात करते हैं, उसके लिए ये कोशिश करते हैं. And finally these people are not satisfied until solution is found and tension is reduced. तो जब तक solution ना मिल जाए problem का, जब तक conflict को solve ना कर लिया जाए, जब तक tension reduce ना हो जाए, ये लोग चैन से नहीं बैठते. तो अभी तक हमने जो पांचों leadership जो conflict की हमने बात की, जब हमने पांचों conflict styles की बात की, तो यहाँ पे हम ये कहते हैं कि which style is better? Okay, my question to you is, which style is better? Now we have talked about teddy bear, we have talked about owl, we have talked about fox style of conflict, we have talked about other styles. So which style is better? So the professionals and the researchers, they all believe that this owl conflict style is highly recommended. So why? Because these are the genius people. These people really want to improve the performance of teams, and these people really want to improve the performance of the organization and things like that. Now finally we move on towards the agreements, how we can have an agreement between different groups or individuals who have a conflict situation. So we need to have a SMART agreement, and SMART stands for specific, measurable, achievable, realistic, and time bound. Now in any situation in your organization, solving the problem is the goal, not winning. So meaning that we should not focus on winning or losing. We need to focus more on solutions. So बजाय ये कहने के this is my success and your failure or vice versa, कि आपकी सक्सेस है और मेरा फेलियर है, या मेरी सक्सेस है और आपका फेलियर है, बजाय इस चीज़ को फोकस करने के, दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट, वी नीड टू फोकस ऑन सॉल्यूशंस. सो विनिंग लूजिंग को हमें साइड पे करना होगा और हमें सॉल्यूशंस को फोकस करना होगा कि आई कैन इंप्रूव माय पॉइंट ऑफ व्यू इफ आई इंक्लूड योर पॉइंट ऑफ व्यू इन माय पॉइंट ऑफ व्यू एंड वाइस वर्सा. तो दिस इज व्हाट वी नीड इन द पब्लिक सेक्टर ऑफ पाकिस्तान जब हम बात करते हैं कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट की. Okay, these are some of the good things about peaceful conflict resolution. You can read it yourself. Okay,
Thank you very much, all of you. And today we have talked about team building. We have talked about conflict management. We in our today's discussion, we talked about how we can develop a wonderful team, how we can get the best out of our team members. So two individuals, when they are working separately, the output is less. And if those two individuals are working together as a team, we move towards synergy. Like for example, individuals, when they are working separately, 1 plus 1 is equal to 2. When those two individuals are working as a team, the result is 11. So we call that synergy. And then we talk about conflict. So having conflict in any organization is a natural phenomenon. There is no place on earth where there is no conflict. So workplace पे conflict होना is a very common thing, is a natural phenomena. जब लोग इकट्ठे एक जगह काम करते हैं तो definitely they have conflicts. आज के lecture में हमने discuss किया कि what are the reasons why we have conflicts, और then we have also discussed कि different उनकी कौन से स्टाइल्स हैं कॉन्फ्लिक्ट्स के, और डिफरेंट हमने डिफरेंसेस को देखा, हमने डिफरेंट सॉल्यूशंस को देखा, हमने डिफरेंट सॉल्यूशंस देखे कि कॉन्फ्लिक्ट को सॉल्व करने के लिए हमने 5 स्टेप्स को डिस्कस किया. एंड देन वी डिस्कस्ड कि अगर उन तमाम 5 स्टेप्स को डिस्कस करने के बावजूद भी अगर इफ़ वी आर अनएबल टू मैनेज द कॉन्फ्लिक्ट, देन वी कैन टेक हेल्प फ्रॉम द मीडिएटर, एंड देन फाइनली वी कैन टेक हेल्प फ्रॉम द आर्बिट्रेटर. ओके, एंड आज के लेक्चर से हमने कोशिश ये की कि हाउ वी कैन ट्राई टू इम्प्रूव द परफॉर्मेंस ऑफ द पब्लिक सेक्टर ऑफ पाकिस्तान. सो दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट, एंड दिस इज ओनली पॉसिबल इफ वी आर एबल टू बिल्ड स्ट्रॉन्ग टीम्स एंड इफ वी आर एबल टू मैनेज आवर कॉन्फ्लिक्ट्स वेल. Thank you very much for your kind attention. Thank you and Khuda Hafiz.